سب سے پہلے بات کریں گے کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ کے تحت امتحانات برائے سال 2023 کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ انٹر کے سالانہ امتحانات بروز منگل 30 مئی 2022 سے شروع ہو رہے ہیں۔ مزید اس پر بات کر راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زبیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی، دیکھیں کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ کے تحت امتحانات برائے 2023 کی تاریخوں کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ انٹر بورڈ کے تحت سالانہ امتحانات بروز منگل 30 مئی 2023 سے شروع ہو رہے ہیں، جبکہ امتحانات کا سلسلہ بروز منگل 27 جون 2023 تک جاری رہے گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پہلی شفٹ میں سائنس کا پرچہ منعقد ہوگا، دوسری شفٹ میں جنرل گروپ کا پرچہ منعقد ہوگا جو کہ 3 گھنٹے پر مشتمل ہوگا۔ اس میں پہلی شفٹ کا امتحانی وقت جو ہے صبح 9 بجے سے 12 بجے تک ہے، جبکہ دوسری شفٹ میں ہونے والا جو پرچہ ہے دوپہر 2 بجے سے 5 بجے تک منعقد ہوگا۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے تحت جو ہے امتحانات کے باقاعدہ جو ایک شیڈول ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ طلبہ و طالبات جو کہ اپنے ڈیٹ شیٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کو وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے جو ڈیٹ شیٹ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ناظم امتحانات جو ہیں جو اس سے پہلے تھے ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا میرپور خاص بورڈ میں، تو اب جو ہے بطور قائم مقام ناظم امتحانات کے جو فرائض ہیں وہ زاہد رشید جو ہیں جو کہ ڈپٹی کنٹرولر تھے وہ سر انجام دے رہے ہیں، لیکن یقیناً جو ایک طریقہ کار تھا پچھلے سال کی بنسبت اس سال کافی حد تک انٹرمیڈیٹ بورڈ جو ہے ان کو ایک سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ پہلے جو کنٹرولر تھے تمام تر چیزیں انہوں نے دیکھی تھی، لیکن جو اب قائم مقام کنٹرولر ہیں جو کہ پہلے کے ڈپٹی کنٹرولر تھے ان کے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں ہوگا۔ جی اچھا زبیر، ہم نے دیکھا ہے کہ پیپرز جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیمیا، حیاتیات اور طبیعیات کے بعد آج ریاضی کا بھی پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے۔ سوالیہ نشان ہیں، سوالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں، چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس پر کیا تحقیقات کی جا رہی ہیں، ہو کیا رہا ہے؟ ہاں بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ میٹرک کے امتحانات جو ہیں ایک مذاق بن کے رہ چکے ہیں۔ کراچی میں انٹرنیٹ بحال ہوتے ہی نقل مافیا بے لگام ہو چکی ہے۔ ثانوی بورڈ انتظامیہ بے بس دکھائی دیتی ہے، نقل مافیا کے سامنے جو ہے گھٹنے ٹیک چکی ہے۔ امتحانی وقت سے قبل روزانہ پرچے آؤٹ ہونے کی شکایت جو ہے بدستور ہمیں دیکھنے کو نظر آتی ہے۔ کیمیا، حیاتیات اور طبیعیات کے بعد آج ریاضی کا پرچہ بھی آؤٹ ہو گیا۔ 10ویں جماعت کا پرچہ امتحانی وقت سے شروع ہونے سے قبل ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ سوالیہ پرچے کے ساتھ ساتھ حل شدہ پرچہ بھی سوشل میڈیا پر دستیاب ہے، جس کے تحت جو ہے نقل مافیا بآسانی جو ہے تمام تر سوالات جو ہے حل کر سکتی ہے۔ تو اس کے خاطر خواہ اقدامات اٹھانے کی ذمہ داری یقیناً ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کی ہوتی ہے، لیکن میں پھر یہ بات دہراؤں گا کہ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی یہ موقف اپناتا ہے کہ اگر پرچہ رات گئے آؤٹ ہو تو اس کی ذمہ داری میٹرک بورڈ پر آتی ہے، لیکن اگر صبح کے اوقات میں جب سینٹر پہنچا دیا جاتا ہے پرچہ میٹرک بورڈ سے نکل جاتا ہے تو اس وقت اگر پرچہ آؤٹ ہوتا ہے تو اس کی شکایت یا اس کا کوئی بھی بلیم جو ہے میٹرک بورڈ کراچی پر لاگو نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ٹیکنیکل بورڈ کے تحت امتحانات میں آج طبیعیات کا پرچہ ہوگا۔ گزشتہ روز نارتھ کراچی میں گورنمنٹ بوائز اسکول میں نقل کی شکایت موصول ہوئی تھی۔ امتحانی کمرے میں صرف ایک ہی استاد ڈیوٹی پر مامور تھے، جبکہ ناظم امتحانات عذرا نظیم جو ہے اسکول میں نقل سے لا علم نکلی ہے۔ تو صرف نقل مافیا نے جو ہے میٹرک بورڈ کراچی کو ہی اپنے گرد جو ہے اس پر قابض نہیں ہے۔ جو ٹیکنیکل بورڈ کے امتحانات ہو رہے ہیں تو اس میں بھی نقل جو ہے کھلم کھلا کی جا رہی ہے، اور جہاں پر امتحانی مرکز میں امتحانی کمرے میں 2 انویجیلیٹر تعینات ہونا تھا تو وہاں پر ایک ہی انویجیلیٹر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ابھی میٹرک کے بعد ٹیکنیکل بورڈ کے بھی امتحانات چل رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اب انٹر بورڈ کے جو تحت جو امتحانات ہیں جس کا اعلان جو ہے کر دیا گیا ہے 30 مئی کو ان کا پہلا پرچہ ہوگا، تو ان کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے کہ جس طریقے سے میٹرک بورڈ کراچی کے دعوے دھڑے کے دھرے رہ چکے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انٹرمیڈیٹ بورڈ بھی اسی طریقے کی ایک عملی اپنائے اور ان کو بھی اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اچھا زبیر، ہم نے دیکھا کہ طالب علم کی اگر تصویر جو ہے وہ سیم نہیں ہے تو بھی پرچہ دینے کی اجازت ہے۔ پھر سامنے آیا تھا کہ جی تجربہ کیا گیا ہے آن لائن بھیجنے کا، ڈیجیٹل بھیجنے کا، انرولمنٹ اور ایڈمٹ کارڈ، 7 لاکھ بچوں کا مستقبل تجربے کی نظر ہو گیا ہے۔ اس پر کیا اپڈیٹس آئی ہیں؟ اس پہ بھی تو مشکلات ہوتی ہوں گی طلبات کو۔ دیکھیں جو بچہ نقل کے ذریعے جو ہے پرچے میں اپیئر ہونا چاہتا ہے تو اس کے تو وارے نیارے ہو چکے ہیں،
اس کے بارے نیارے اس مناسبت سے ہو چکے ہیں کہ دیکھیں ایک جانب اس کے اب دو زاویے ہو جاتے ہیں، دو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، دو نظریات ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم اس سچویشن کو دیکھتے ہیں۔ اگر میٹرک بورڈ کراچی کے حوالے سے بات کی جائے تو میٹرک بورڈ کراچی یہ کہتا ہے کہ ہمارا ڈیجیٹلائز ایڈمٹ کارڈ کا اس بار پہلا تجربہ تھا، تو اس وجہ سے کسی قسم کا کوئی بھی ہیومن ایرر نہ رہ گیا ہو اور طالب علموں کو دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس مناسبت سے انہوں نے ایک خط جاری کیا امتحانی سینٹرز میں کہ اگر ایڈمٹ کارڈ میں بچے کی تصویر مختلف ہو یا اس میں رد و بدل ہو تو بچے کا امتحان ضائع نہ ہو، بچے کو امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس سے جو ہے کیا بچے کو واقعی جو ہے ایک بینیفٹ مل رہا ہے یا وہ بچے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو پڑھنے والے بچوں کے ذریعے جو کہ نااہل بچہ ہے اس کے ذریعے ایک دوسرا بچہ بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ پیپر جو ہے حل کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سوالیہ نشان پیدا ہو جاتا ہے بورڈ انتظامیہ کے لیے، کیا ان کا یہ فیصلہ جو ہے طالب علموں کے مفاد میں بہترین ثابت ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو نقل مافیا کے وارے نیارے ہو چکے ہیں، اس خبر پر ایکشن لیتے ہوئے نقل مافیا جو ہے کافی حد تک جو ہے ہمیں ایک ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس اپرچونٹی کو وہ اپنے ہاتھ سے کیسے بالکل ایک بزنس کی طرح اس چیز کو لیا جا رہا ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سوالات پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، جواب دینے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جواب دینے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ سید عبیر راشد ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ۔ ڈی ایم سی ملی کے ڈائریکٹر ایجوکیشن کا سپروائزر اعجاز فاطمہ کے ہمراہ مختلف اسکولوں میں چھاپا ہے۔ ڈی ایم سی کے زیر اہتمام چلنے والے اسکولوں میں تحقیقات کی جا رہی ہے۔ آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے جنید جاوید۔ بالکل ڈی ایم سی ملیر کے بوریا خان گوٹ اسکول کے اندر اس وقت میں موجود ہوں، جہاں پر ڈی ایم سی کے زیر انتظام جو چلنے والے اسکول ہیں وہاں پر اس وقت پرچے ہو رہے ہیں۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن جمال ناصر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ جمال صاحب، آپ نے کتنے اسکولوں کا دورہ کیا اور کون کون سی کلاسز کے ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ڈی ایم سی ملیر میں جتنے تقریباً 50 اسکول ہیں، 4 سے لے کے 8 تک میں سب میں پیپر ہو رہے ہیں، اور مختلف اسکولوں کے اندر ہم نے وزٹ کیے، اور آج موریا خان گوٹ میں آئے، یہاں پہ اردو کا پیپر چل رہا ہے، اور ٹیچرز اور سپروائزر ایچ ایم سب میرے ساتھ ہیں اور چیکنگ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے بچے۔ اچھا، بچے تو چیٹنگ کر لیتے ہیں، کوئی ایسا بچہ پکڑا گیا جو چیٹنگ کر رہا؟ نہیں، ہم ابھی تک تو کوئی ایسا بچہ پکڑا نہیں گیا کوئی چیٹنگ کرتا ہوا۔ پیپر آسان ہے اور بچوں نے مطلب تیاری اچھی کری ہے، ایچ ایم اور ٹیچروں نے اچھی تیاری کرائی ہے، تو ایسا کوئی نقل کا رجحان ہمارے ان اسکولوں میں ہے بھی نہیں۔ جی بالکل، 9th اور میٹرک کے جب ایگزام ہوتے ہیں تو وہاں پر پہلے سے پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہے، لیکن ان کلاسز میں ایسا ہوتا ہے کہ پرچہ آؤٹ ہونے کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ چیٹنگ کا کوئی ایسا عنصر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ لیکن ٹیچرز جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں، ہر کلاس کے اندر ہم الگ ٹیچر دیکھ رہے ہیں جو کہ سپروائز کر رہی ہیں۔ کوئی بچہ چیٹنگ تو نہیں کر رہا، لیکن یہ آج جو پیپر چل رہا ہے وہ اردو کا پیپر ہے۔ اب آخری پیپر ان کا ایک اور، یہ سیکنڈ لاسٹ پیپر ہے، ایک اور پیپر ہونا باقی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کا یہ ختم ہو جائے گا۔ جی اب آپ کو بتائیں، ایڈیشنل چیف سیکرٹری سندھ کی جانب سے بنائی جانے والی ٹاسک فورس جانوروں کی صحت کے حوالے سے معلومات کے لیے چڑیا گھر پہنچ گئی ہے۔ زو انتظامیہ کی جانب سے انہیں تفصیلات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اس بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے احسن عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی احسن۔ جی بالکل، آج کراچی زو میں بنائی جانے والی ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی جانب سے جو ٹاسک فورس تھی اس کا پہلا وزٹ ہوا ہے، مکمل طور پہ معائنہ کرایا گیا ڈائریکٹر زو کی جانب سے، اور تفصیلات جو ہیں وہ طلب کی گئی جو کہ ڈائریکٹر زو اور متعلقہ ڈاکٹرز کی جانب سے فراہم کی گئی ہیں۔ اس وقت ڈائریکٹر زو قمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا کیا تفصیلات اکٹھا ہوئی، آج پہلا وزٹ تھا، کون لوگ ہیں جنہوں نے آج وزٹ کیا اس کمیٹی میں؟ دیکھیے، یہ چونکہ ایک بڑی لمبی کمیٹی ہے، 12-15 لوگوں پہ مشتمل ہے، اور اس میں ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی ہیں، اس میں ہمارے سیکٹری لوکل گورنمنٹ بھی ہیں، اس میں کے ایم سی بھی ہیں، میں خود بھی ہوں، اور مختلف طبقہ فکر کے لوگ بھی موجود ہیں، اس میں این جی اوز کے لوگ موجود ہیں، اس میں WWF کے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ ایک مکمل جامع کمیٹی ہے جو اپنی رپورٹس جب جمع کرائی گئی سندھ گورنمنٹ کے پاس، تو اس کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے اور بہتری کے کام کیے جا سکیں گے۔ تو ابھی وزٹ جاری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ذرا یہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد پھر مزید چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا فائنڈنگز ہیں ان کی۔ لیکن ابھی چونکہ کراچی زو میں ہیں ہم اس وقت، اس کے بعد سفاری پارک جانا ہے، وہاں کے بھی انتظامات دیکھنے ہیں انہوں نے،
किस हद तक ये मुतमईन हैं, क्या ये चाहते हैं, मज़ीद बेहतरी क्या की जा सकती है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस की जाएंगी आज के विजिट के बाद इंशाल्लाह। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, आप डायरेक्टर जू भी हैं और साथ साथ कमेटी का हिस्सा भी हैं। आप क्या समझते हैं कि आज के विजिट में जो तफसीलात दी गई हैं उससे मुतमईन है और कोई बेहतरी आएगी? देखिए, अभी ये विज़िट चूँकि जारी है और यकीनन बेहतरी इसलिए आएगी कि जब बहुत सारे लोग मिलकर के काम कर रहे होते हैं तो काम में और निखार बेहतरी आ जाती है। तो हमारे लिए तो ये बहुत सपोर्टिंग है कि अगर ये इस तरह के लोग हमारे साथ शामिल हों तो हमें आसानी होगी काम करने में। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये जो कदम है, मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा कदम है जो उठाया गया है ज़ू सफारी और लांडी करंगी ज़ू की बेहतरी के लिए। तो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल ताउन भी करेंगे और हम कोशिश भी करेंगे कि जिस तरह की डिमांड हमसे की जा रही है या जिस तरह सोचा जा रहा है कि हम इसको किस तरह से बेहतर कर लें तो उस स्टेज तक इसको लेके जाएं और इसमें बेहतरी लाएं इंशाल्लाह। ठीक है, आखिरी सवाल मुझे बता दीजिएगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक जो है मुतवक्के है कि आप तक अरसाल हो जाएगी? इंशाल्लाह ताला इसी वीक के एंड में हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाएगी और मेरी कल भी बात हुई है। मैं इस हद तक मुतमईन हूँ कि मेरा ख्याल है कि सैटरडे तक हमें लाजमी वो रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। उसके बाद फिर दीगर जो हमें काम करने हैं उसके बाद किए जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये डायरेक्टर जू थे कंवर अयूब जो तफसीलात बता रहे थे, ख़ुद कमेटी के मेंबर भी हैं और साथ साथ जो है कराची चिड़ियाघर के डायरेक्टर भी हैं। उम्मीद जाहिर की है कि सिंध गवर्नमेंट का ताउन रहा तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची के खुसूसी तवज्जो के बाद जो है ये तमाम तर मामलात हल किए जा रहे हैं। वो खाली पिंजरे वो भी भरे जाएंगे, पेयर्स कंप्लीट किए जाएंगे, तज़ीन और आराइश का काम किया जाएगा, सफाई सुथराई होगी और अव्वलीन तरजीह जानवरों की देखभाल में कोई नहीं जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अपने नाजरीन को अपडेट करते चलें। सिंध हुकूमत ने छोटे किसानों के फसलों की इंश्योरेंस कराने का फैसला कर लिया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने फैसले की हतमी मंजूरी सिंध काबीना की मंजूरी से मशरूत कर दी है। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, सिंध हुकूमत ने छोटे किसानों के फैसलों की इंश्योरेंस कराने का फैसला कर लिया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने फैसले की हतमी मंजूरी सिंध काबीना की मंजूरी से मशरूत कर दी है। किसानों के लिए अहम इकदाम करने जा रहे हैं और इसमें देखना होगा कि किस हद तक ये फैसला जो है कबूल किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने छोटे किसानों के फसलों की इंश्योरेंस कराने का ये फैसला किया है और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने फैसले की हतमी मंजूरी सिंध काबीना की मंजूरी से मशरूत कर दी है। अपडेट कर रहे हैं, छोटे किसानों के फसलों की इंश्योरेंस की मनसूबाबंदी जो है वो की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास में फ़ैसला किया गया है। मज़ीद आपको बता रहे हैं, इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत, CEO और दीगर शामिल थे। बात करेंगे, आज़ाद मोड़ियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सूबे भर के छोटे किसानों के फसलों की इंश्योरेंस की मनसूबाबंदी करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत, CEO नेशनल इंश्योरेंस कंपनी समेत दीगर जो है हुकाम शरीक हुए। इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि मौसमियाती तब्दीली के असर से सिंध में ज़राअत का शोबा बहुत मुतासर हुआ है। गुज़िश्ता साल बारिशों और सैलाब से किसानों का माली नुकसान हुआ है। छोटे किसानों को माली नुकसान से बचाने के लिए फसलों की इंश्योरेंस लाजमी है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि चाहते हैं कि छोटे किसानों को कुदरती आफात में नुकसान की सूरत में माली मदद हासिल हो। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सेक्रेटरी ज़राअत को इंश्योरेंस मॉडल बनाने की हिदायत कर दी है। इंश्योरेंस का ऐसा मिसाली मॉडल बनाया जाए जिससे छोटे किसानों को फायदा हो। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध ने यह भी दर्ज किया है कि मनसूबे के मुतल्लिक सूबाई काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी और काबीना की मंजूरी के बाद सिंध में किसानों का डेटा बेस बनाया जाएगा जिसके तहत इंश्योरेंस की जाएगी। जी PTI एहतजाज के दौरान हंगामा आराई के केस में रहनुमा तहरीके इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी को अदालत में पेश कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्द अदालत ने फिरदौस शमीम नकवी से समेत 14 मुलजमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, PTI एहतजाज के दौरान हंगामा आराई के केस में रहनुमा तहरीके इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी को अदालत में पेश कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्द अदालत ने फिरदौस शमीम नकवी समेत 14 मुलजमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। देखिए जी, आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर हंगामा आराई हुई थी। उस मुतल्लिक मुकदमे दायर किए गए थे। टीपू सुल्तान पुलिस ने फिरदौस शमीम नकवी और दीगर मुलजमान को अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने दौरान समाअत अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। मुलजमान की CR और दीगर कार्रवाई भी मुकम्मल की जा चुकी है।
2 मुल्ज़मान के 164 के बयानात भी जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू रिकॉर्ड करवाने हैं, जबकि अदालत ने फिरदौस शमी नकवी समेत 14 मुल्ज़मान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है और आइंदा समाअत पर तफ्तीश अफसर से जो है चालान भी तलब कर लिया है। तहरीक इंसाफ के वकला ने मुल्ज़मान की दरख्वास्त जमानत भी जो है वो जमा करा दी है। अदालत ने तफ्तीश अफसर और प्रोसिक्यूशन से 19 मई को जवाब तलब कर लिया। जी बहुत शुक्रिया मुमताज जमाली, अपडेट कर रहे थे। आटे, तेल, घी की खरीदारी शहरियों के लिए मुहाल हो गई। शहरी कहते हैं आटा, तेल, घी हर घर की ज़रूरत है, लेकिन मुनाफाखोर इनकी कीमतें कम करने को तैयार नहीं है। वजूहात क्या हैं ये बताएंगे बसीम इफ्तिखार। जी इस वक्त मैं शहाबुद्दीन मार्केट में मौजूद हूँ और बात करें हम तेल घी की, तो तेल घी का शुमार रोज़मर्रा इस्तेमाल की अहम अशिया में होता है। लेकिन अगर हम बात करें आटे की, तो आटा जो है ब्रांडेड कंपनियों का वो ताहाल सस्ता नहीं हो सका है। 10 किलो का थैला 1600 रुपये तक में दस्तियाब है। 5 किलो का थैला आटे का जो है वो तकरीबन 750 से लेके 800 रुपये तक में दस्तियाब है। अगर हम तेल की बात करें तो बी ब्रांड का जो तेल है वो फ़ी लीटर तकरीबन 500 रुपये तक में दस्तियाब है। लेकिन ए ब्रांड का तेल जो है वो सस्ता नहीं हो पाया है। ए ब्रांड का तेल घी 600 रुपये से लेके 630 रुपये तक में दस्तियाब है। शहरियों से जानते हैं, आप ये बताइएगा कि अंकल जो तेल और घी है बिलखुसूस मुख्तलिफ ए ब्रांड का वो सस्ता नहीं हो सका है, हालांकि दीगर तेल घी सस्ते हैं। इसी तरीके से आटे की बात करें तो आटा लग्जरी आइटम में नहीं आता, रोज़ाना घर के इस्तेमाल की है ज़रूरत है, लेकिन आटा भी जो है वो कंपनियों का आटा सस्ता नहीं हो सका है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इस हवाले से ये कि यही हो रहा है, करप्शन ही हो रहा है और क्या हो रहा है। जो हमारा पाकिस्तान की चीज़ें हैं बाहर जा रही है और यहाँ नहीं मिल रही है। बाकायदा आप देखते होंगे कि ट्रक जा रहा है मगर यहाँ नहीं। अभी बीच में कई ट्रक पकड़ा गए जाते हुए। आवाम महंगाई की वजह से कितना परेशान है और क्या मुनाफाखोर सस्ता नहीं कर रहे क्या? नहीं, मुनाफाखोर की बात कर रहा हूँ ना। करप्शन क्या हुआ, मुनाफाखोर ही हुआ ना। अभी मैं आ रहा हूँ तो टिकट के रेट पुराने वाले लिखे हुए 1100 रुपये, मतलब ये पुराने रेट लिखे हुए हैं 1150 पुराने, सही है। और ये वो टिकट है 800 रुपये की। अच्छा, तेल घी कितना सस्ता होना चाहिए, आटा कितना सस्ता होना चाहिए? जितना सस्ता होगा आवाम को जितना भी रिलीफ मिलेगा वो सही है। जितना महंगा होगा आवाम परेशान है, अपने आप को मारने को तैयार है। जो कारोबारी बंदा है उसको कोई फ़र्क नहीं है। जो रोज़ जिसका चूल्हा जलता है ना, उससे पूछो कि क्या है, समझे। आपसे मैं जी बिल्कुल, ये थे शहरीन से बात हुई। इनका कहना है कि जो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितना आवाम को रिलीफ दिया जाएगा महंगाई से उतने ही जो है वो अच्छी बात है, क्योंकि इस वक्त आटा भी और तेल भी शहरियों के लिए उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है। ए ब्रांड का आटा और ए ब्रांड का तेल जो है वो शहरियों के लिए अब जो है वो ख़रीदना मुश्किल है। इनका ये कहना है कि जो मुनाफाखोर हैं वो इस वक्त तमाम तर जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आटा है और तेल घी है उनकी कीमतों को उन्होंने बढ़ाया हुआ है। आवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए जो है वो बहुत शुक्रिया बसीम इफ्तिखार, अपडेट कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ ताहाल आवाम तक नहीं पहुंच सका है। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में ताहाल कमी ना होने पर शहरी भी फट पड़े हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से। जी काविश। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी का ऐलान हो गया है, लेकिन हमने देखा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी नहीं हो सकी। और गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख़जाना ने भी कहा था कि पेट्रोल का रिलीफ जो है आवाम तक पहुँचना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, बस में उनसे बात करते हैं। ऐसा बताइएगा, पेट्रोल तो सस्ता हुआ है लेकिन किराया कम नहीं हुआ है। तो ये भाई किराया कम होगा भी नहीं। जब 5 रुपये बढ़ता है तो 10 रुपये पर हेड बढ़ा देते हैं। जब कम होता है तो इनकी लुगत में कम करना है ही नहीं, क्योंकि वो थैली आपको ऊपर पहुंच जाती है, ट्रांसपोर्ट वाले ऊपर थैली पहुंचा देते हैं, तो काम कैसे कम होगा। हमारे यहाँ तो कोई कहने वाला है ही नहीं, ना सुनने वाला है। अल्लाह तवक्कल से सारा काम चल रहा है, किसकी जो मर्जी है वो कर रहा है। जी बिल्कुल, पेट्रोल में कमी का रिलीफ आवाम तक नहीं पहुंच सका है और आज भी बसों में लोग जो है वो महंगे दामों किराए भी वसूल किए जा रहे हैं और महंगे दामों जो है वो बसों में लोग सफ़र भी कर रहे हैं। शहरियों का यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर बसों के किरायों में भी कमी हो ताकि आवाम को रिलीफ पहुँच सके। जी, पेट्रोल की कीमतों में 12 रुपये कमी के बावजूद रिक्शे वालों ने किरायों में कमी से इनकार कर दिया है, जिनका कहना है कि किरायों में कमी नाकाफ़ी है, स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे हैं। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतों में 12 रुपये कमी का ऐलान किया गया है, जिसके बाद जो है वो पेट्रोल 282 से 270 रुपये फ़ी लीटर पर फ़रोख्त किया जा रहा है। अब पेट्रोल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है तो रिक्शे वाले इस हवाले से क्या कहते हैं, वो क्या समझते हैं इस कमी को? क्या वो किरायों में कमी का ऐलान करेंगे या वो ये समझते हैं कि ये नाकाफ़ी है? हम बात करते हैं रिक्शा वाले से ही। मुझे बताइएगा कि जो 12 रुपये कमी का ऐलान हुआ है, क्या समझते हैं इससे आपकी मुश्किल आसान होगी, किरायों में कमी होगी या फिर ये बहुत नाकाफ़ी है? अस्सलाम वालेकुम जी। बात ये है कि भाई जब पेट्रोल बढ़ता है तो 30 रुपये 40 रुपये के हिसाब से बढ़ता है।
अभी हुकूमत ने 12 रुपये या 10 रुपये कम किया तो ये कुछ भी नहीं कम किया, या जैसे 30, 35, 40 बढ़ाए थे वैसे 40 कम करते, क्योंकि इस पेट्रोल की वजह से गाड़ियों के स्पेयर पार्ट बढ़ गए हैं। जो गरीब आदमी रिक्शा चला के अपना घर चलाएगा, कैसे चलाएगा? 3-4 बच्चों की स्कूल की फ़ीस कहाँ से देगा? मकान का किराया कहाँ से देगा? बहुत मुश्किल हो गया है। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, आयल महंगा है। 500 रुपये का नॉर्मल आयल मिल रहा है, आप देखें 700 रुपये का 5 किलो आटा मिल रहा है। गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। अगर कमी करनी है तो जितना बढ़ाते हैं कम से कम उतना बढ़ाएं। ये 10-12 रुपये बढ़ाए हैं, ये हफ्ते बाद 10 दिन बाद ये फिर 25-30 रुपये फिर बढ़ जाएंगे। देखा आपने, इनका यही कहना था कि ये जो किरायों में कमी हुई है, जिस तरह वो बढ़ाते हैं 30-35 रुपये, कमी भी उस हिसाब से करें। ये यही कहते हैं कि किरायों में कमी हम कैसे करें कि जो रिक्शे के स्पेयर पार्ट्स हैं, जो इसकी मेंटेनेंस है, उसका ख़र्चा बहुत ज़्यादा आ गया है। और जो नॉर्मल ऑयल है वो मार्केट में 500 रुपये में दस्तयाब है। तो यही कहते हैं कि इनकी इतनी आमदनी नहीं है, पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद कमी होएगी तो फिर ये किरायों में कमी का ऐलान करेंगे। जी, मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर सनतकार परेशान हो गए हैं। काटी की साबिक सीनियर नायब सदर माहीन सलमान का कहना है कि करंट अकाउंट खसारा कम तो हुआ लेकिन दरामदात को रोक कर हुआ है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, मीशत की सूरत हाल पर देखा जाए जायज़ा को 10 माह में ख़राब माशी अदद शुमार हैं, उसकी मीशत पर शदीद मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। डॉलर देखा जाए 1 साल में जो है 108 रुपये महंगा हो गया। दीगर क्या क्या चीज़ें हुई हैं? काटी के साबिक जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट माहीन सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रही मैम, जो हम कह रहे थे उससे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल? बिल्कुल ख़तरनाक सूरत हाल है और बहुत डिप्रेसिंग सूरत हाल है, इसलिए कि मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में इकोनॉमिस्ट्स का फुकदान हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इकोनॉमी का पहिया चलाने के लिए सही पॉलिसीज़ क्यों नहीं लेकर आई जा रही। आपको फिस्कल मेजर्स के ऊपर भी इक्वली काम करना पड़ेगा। हमने ग्रोथ रेट डिक्लाइन देखा, अपना करंट अकाउंट डेफिसिट, जी इंपोर्ट्स कम कर दी, बट देयर इज़ एन आर्टिफिशियल डिक्लाइन इन इंपोर्ट्स। ये आपने ज़बरदस्ती कर्ब करी है वो चीज़ जो कि इंडस्ट्री की ज़रूरत थी। आपने क्या उसको वो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए कोई पॉलिसी दी? आपने वो चीज़ें अपनी मुल्क के अंदर पैदा करने की कोई बात करी? आपने अपने स्टार्टअप्स को, आपने अपनी SMEs को बूस्ट करने के लिए कोई पॉलिसीज़ दी? उन्हें टैक्सेशन के कोई रिलीफ्स दिए? उनके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कम करी? आपने ऐसा कोई मेजर नहीं लिया, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अगर मैं ये कहूँ कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, वाह वाह वाह, इट्स नॉट दैट। ये वाह वाह की बात नहीं है, ये रोने का मुकाम है, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल फिगर को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करा है। ये रियल टर्म्स के अंदर, रियल ग्रोथ के अंदर हमारे मुल्क को इस डिक्लाइन का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात करते हैं। एक्सपोर्ट्स जब तक नहीं बढ़ेंगी जब तक आप इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, जब तक आप तमाम रॉ मटेरियल अपने मुल्क में नहीं बनाएंगे। जब आप ये करेंगे ना तो फिर आपका रियल टर्म्स के अंदर इंपोर्ट का बिल कम होगा और आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, और उस वक्त हम फ़ख्र से कह सकेंगे कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया। मगर ऐसी कोई पॉलिसी हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे जो शदीद कंसर्न्स हैं, जो माशी अदद शुमार हैं वो अच्छे नहीं हैं, और साथ ही ये कहा है कि अब सूरत हाल ये हो गई कि सनतकार भी अब बैठ के योमिया की बुनियाद पर अपनी कैलकुलेशन करता है, क्योंकि बिजली की कीमत हो, गैस की कीमत हो, हर शय की कीमत रोज़ ब रोज़ बदल रही होती है, तो उसके हिसाब से। शुक्रिया अशरफ खान अपडेट करने के लिए। कराची की इंतहाई मसरूफ शाहराह यूनिवर्सिटी रोड पर गटर उबलने से सड़क टूट फूट का शिकार हो गई है। वजूहात क्या हैं, जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नुमान गुल वहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मेन यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हूँ और ये यू टर्न के लिए जो पुल बनाया गया था मैं उसके बिल्कुल नीचे मौजूद हूँ। मेरे इस जानिब जो है शेख ज़ैद एकेडमी भी है और उसके आगे कराची यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद ये मरकज़ी शाहराह पर गंदा पानी मौजूद है, जगह जगह खड्डे मौजूद हैं, और जिसकी वजह से जो गाड़ियां हैं वो अब इस शाहराह से नहीं गुजरती बल्कि इसके साथ जो सर्विस रोड से वहाँ से होकर गुजर रही हैं। और अगर मेरे कैमरामैन इजलान आपको दिखा सके तो ये इस वक्त भी गाड़ियाँ जो है सर्विस रोड की तरफ जा रही हैं, जबकि वहाँ से आने वाला रोड है, और जब गाड़ियाँ वहाँ से ट्रैफिक आ रहा हो और यहाँ से भी उतर रहा हो तो इसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी काफ़ी मुतासिर होती है। साथ ही यहाँ पर बेतहाशा खड्डों की वजह से जो शहरी हैं वो भी काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मेरे साथ भी कुछ शहरी मौजूद हैं, मेरी कोशिश है कि मैं उनसे भी बात करूं। सर मुझे बताइएगा ज़रा, ये खड्डे कब से मौजूद हैं, गंदा पानी कब से निकल रहा है? से तकरीबन 6 महीने पहले ये कारपेटिंग यहाँ रोड हुआ है, 4-5 दफ़ा ये टूट चुका है। इसको
वो कंप्लीट नहीं करते हैं, ऐसे आके मोटर लगा के गाड़ी आते हैं, इसमें से सीवरेज निकाल के कुछ दिन चलता है, महीना 15 दिन के बाद फिर आ जाता है। यहाँ से एकरा सिटी से जो बच्चियाँ आते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं, यहाँ काफ़ी स्कूल हैं इस गली में, सारे आते हैं, इनके लिए इतना परेशानी होता है, बड़ा मुश्किल, गाड़ियाँ फिर वहाँ से मुड़ते हैं। यकीनी तौर पर अहले इलाका जो हैं, जो यहाँ पर अपना कारोबार करते हैं, जो यहाँ पर मौजूद होते हैं, वो इन परेशानियों से रोज़ाना की बुनियाद पर दो चार रहते हैं। और उनका ये कहना है कि यहाँ पर रोड कारपेटिंग तो कर दी जाती है, लेकिन जो सीवरेज का बोसीदा यहाँ पर निज़ाम है उसे दुरुस्त नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो रोड बनाया जाता है वो भी खस्ता हाल हो जाता है।